Hello everyone. I hope you all are doing well. Doing well. So, my dear friends, today I will talk something about related to UPSC final result, and further I will also talk related to UPS Hindi medium result. Okay, why Hindi medium lacking in a final list or something else, what is the cause of it, okay, and what is the real cause, okay, and also we would like to talk about marketisms in Mukherjee Nagar, Karol Bagh, and many more places, and what is the default of it, okay. So everything I would like to list out, okay, so that you can find out what is the real cause that UPSC aspirant or there is less number of UPSC candidates in final list, okay. So my dear friends, first of all I would like to convince that today or maybe next day or next day, next or next day, okay, UPSC result may be declared, okay. So don't waste your time on it, on thinking on overthinking, okay. I am saying this because prelims exam is very close or very near, okay. So if you are thinking over it, definitely you are destroying your time, or you are it may harm your prelims examination. Means it may be, it might be very dangerous for your exams, okay. So without any agitation, without any thinking on it, you should focus on prelims examination. You should focus on a study so that you can perform well in UPSC CSE prelims 2023, because this is first phase and most important phase in entire UPSC journey. Because if you are unable to declare, or if you are unable to clear this first phase, definitely you will not allow in further mains or interview exam, okay. So this is crucial for your preparations, okay. And next I would like to discuss about why UPSC aspirant lacking in final list. It may be in prelims examination, it may be in mains examination, or it may be in interview or final list, okay. So my dear friends, as per my experience, okay, because as being a teacher also, first of all I would like to say I am not only a IS aspirant, but I am also a teacher, okay, for expenditure, means you can say. So being a teacher, I have some experience about it, and sometimes whenever I visit in any UPSC coaching institute, I realized even whenever I watch some videos, or you can say when I uh, listen to any coaching institute lecture, okay, then my dear friends, this is not fault of innocent students, whoever clear whoever pass out from BA or any degree, okay.
it may be BTech, or it may be MBBS, it may be commerce, and it may be sciences stream students. Okay, especially I would like to discuss about BA or some those courses which are professionally not recognized. Okay, and the aspirant who are belonging to such areas like BA and some many more programs, okay, from commerce backgrounds, from normal science background. Okay, because the students from this background, okay, are not so much aware. I am not talking about all students. Some students are very well, very aware and very mature. Okay, and many of them are not aware of environment, aware of something related to UPSC or something related to daily life. Okay, so my dear friends, those students are very very innocent in their respective fields. Okay, and they really require guidance from other. Okay, really, in such conditions, if there are some misguiding, okay, definitely they will be destroyed. Okay, they will be completely destroyed in their life. Because my dear friends, I realize this is not fault of those students, because they are very very innocent, they are very very belonging to those category who will move in those fields in which fields those guiders will provide such type of those type of guidance. Okay, according to guidance further they will move out. Okay, so my dear friends, what is the realization, or you can say what is the nature of those teachers who providing guidance programs, or you can say who are teaching of those students? Okay, so my dear friends, definitely there is marketisms in markets, or you can say this is business type. Okay, and उनको सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, उनको पैसे से मतलब होता है ना। आप चूँकि इनोसेंट है तो आपको है ना अच्छी अच्छी बातें बोलकर बहला फुसला कर वो आपके जाल में फंसा लेते हैं, वो अपनी जाल में फंसा लेते हैं। एंड बिकॉज आप जो है बहुत इनोसेंट है, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, क्या पढ़ना चाहिए, क्या कितना गहराई में पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि आपने इतनी मैच्योरिटी ऑब्टेन नहीं की है। ठीक है, दैट्स वाई वो आपके साथ जो है ना गेम खेल लेते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि ऐसे टीचर्स, देखिए पढ़ाने में आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते, खास करके देखिए मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम में ही है, ये इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है, गधे बनाने वाली बात जो है ना, ये इंग्लिश मीडियम में भी किया जाता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम है वहाँ पे। ठीक है, और जो हिंदी में है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी बात
आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखेंगे ना, तो उसका बचपन से बैकग्राउंड ठीक ठाक रहता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली का जो है ना बैकग्राउंड ठीक ठाक रहता है, थोड़ा सा पैसा का उतना अभाव नहीं रहता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है ना, उसका हिंदी मीडियम चुनने का रीज़न 99% केस ही यही है, पैसा। क्योंकि वो एक मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं और उससे नीचे का, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में लैकिंग होता है और थोड़ा बहुत माहौल का भी होता है फ़र्क, है ना। इस वजह से वो हिंदी मीडियम चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए गेम वहाँ तक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि यूपीएससी किसी लैंग्वेज को लेकर बायसनेस उसमें दिखता है, डिस्क्रिमिनेशन उसमें दिखता है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। एक आध परसेंट केस में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो वो थोड़ा बहुत इंसान का जो है ना मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है ना, किसी की बात है ना कुछ अच्छा लग गया, तो उसमें उस इमोशंस के बहाने, उस इमोशंस की वजह से आपको 2-4 नंबर ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे एज है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक आध परसेंट इधर उधर होता रहता है। उन सब चीज़ों को हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा उसी को कह लीजिए आप लक फैक्टर, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम चीज़ों की बात है ना, तो यही है। यहाँ पर जो है ना बच्चों के साथ, यानी कि स्टूडेंट के साथ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, इवन के अदर फील्ड की भी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना, उनके साथ गेम खेल लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, इतना मैच्योर नहीं है कि वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और सिलेबस को बिल्कुल एनालिसिस करें और उस एनालिसिस के आधार पर, ठीक है, वो एक टीचर को जज कर पाए, ठीक है। हालांकि टीचर को हमें मेरे अनुसार जज भी नहीं करना चाहिए। जो इंडिया का जो परंपरा है, ठीक है, जो ट्रेडिशंस है, गुरु शिष्य वाला परंपरा, उसको हमें भी मेंटेन करना चाहिए। और ये चीज़ मेनली मैं उन पे टारगेट कर रहा हूँ ना, उन पे मतलब सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, मतलब खास करके टीचर के ऊपर, ठीक है। उनको ये बात सोचना चाहिए कि अगर कोई इनोसेंट है तो ऐसा नहीं कि उसके साथ गेम खेल लेना चाहिए, ठीक है, उनके साथ धोखा कर लेना चाहिए, ठीक है ना। उनको ईमानदारी से जो रेलेवेंट है उतना ही तक जो है ना पढ़ाना चाहिए, वही चीज़ पढ़ाना चाहिए जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। अब मैंने ये देखा है कि पढ़ाते हैं बहुत डीप लेवल पर, वो उसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताओ, जब वो चीज़ आपके काम का ही नहीं है, ठीक है। मैं 2-3 दिन पहले है ना किसी का बहुत रेपुटेड कोचिंग है, ठीक है, और शायद मैक्सिमम लोग सुन भी रखा होता है, ठीक है। मैं नाम किसी कोचिंग का, किसी टीचर का रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा खासा रेपुटेड कोचिंग है और रेपुटेड टीचर्स भी हैं, है ना। उनकी बात बता रहा हूँ। उनका एक लेक्चर मिस्टेक से मुझे उसका वो हेडिंग जो है ना मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि उसमें कुछ इफ़ेक्टिव बात है, उसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने देखना शुरू किया था, ठीक है। दरअसल मैं है ना इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ था। लेक्चर जो है ना, जो पीपीटी बनता है ना, वो दोनों मीडियम में लिखा हुआ था, हिंदी और इंग्लिश। तो मुझे कंफर्टेबल लगा, ठीक है। जब लेक्चर सुनना स्टार्ट किया, है ना, ये एक की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जब मैं लेक्चर सुनना स्टार्ट किया तब मुझे लगा यार इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना
यूपीएससी के रिलेवेंट है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे इस घास में पाया जाता है, उसकी वेट इतनी होती है, ठीक है, उस है ना, वो इतने किलोमीटर रफ्तार से चलता है, मतलब इस टाइप से। इन सब एक बात ये लॉजिकली सोचो यार, यूपीएससी जो है ना, इतनी फैक्ट्स अगर पर ध्यान देना लगे ना, तो इतनी बड़ी सिलेबस है ना, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ कभी ऐसे ऐसे कंडीशन में कभी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। और यही रीज़न है, ठीक है, कि यूपीएससी का बच्चे जो है, यूपीएससी का स्टूडेंट कहीं न कहीं लिस्ट से बाहर होते हैं, इन्हीं सब रीज़न की वजह से। उसको है ना, मतलब ज्ञान ही ज्ञान भर देते हैं, ठीक है। एक जितना हार्ड वर्किंग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है ना, उसके कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कम हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन वो चालाकी से अपना सिलेक्शन ले लेता है। इसका रीज़न यही है कि वो थोड़ा सा स्मार्ट तो दिखाता ही दिखाता है, और साथ में जो उसको गाइड करता है ना, उसको भी जज कर पाने में जो है ना, ठीक है, मतलब चुनने में हम चुनने की बात कर रहे हैं कि देखो, आप एक मैच्योर है, एक अवेयर स्टूडेंट है, डेफिनेटली आप एक अच्छा गाइडर भी चुनने में सफल रहेंगे, ठीक है। खैर, तो मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार इसमें मैक्सिमम चीज़ जो है ना रिलेवेंट नहीं है। उसको ऐसे चीज़ों से यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं होता है। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ कहीं न कहीं जो है ना, यूपीएससी की लिस्ट में से बाहर करने का तरीका है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भले कितना भी पढ़ लो आप, ठीक है, भले कितना भी पढ़ा दो देगा कोई, ठीक है, ज्ञान भले ही भर भर के हो जाएगा, एक छोटी छोटी चीज़ जो है ना आपको पता होगा, लेकिन यूपीएससी में ऐसे चीज़ों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। तब मुझे लगा, और ये तो एक दो की कहानी है ना, ऐसे कितने सारे हैं, सैकड़ों में होंगे, ठीक है ना। तब मुझे लगता है यार ये तो इनजस्टिस है स्टूडेंट के साथ। तो देखिए, एक आपने खुद भी तैयारी किया है, मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल तक पहुँचे हैं। इसी बात पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मैक्सिमम लोग झूठ भी बोलता है, ठीक है, भले ही इंटरव्यू तक नहीं पहुँचा होगा, ठीक है, लेकिन बताएगा वो हम इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, हमने इतने बार मेंस क्रैक किया है, हमने इतने बार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। कई सारे लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, ऑब्वियस बात है, पर कुछ लोग ज़रूर झूठ बोलते हैं, है ना। वो इसी झूठ बोल के जो है ना बच्चों को फंसाते हैं, है ना, अपने एडमिशन दिलवा ले लेते हैं, ठीक है। तो इवन कि मेरे जानकारी में भी 2-3 लोग हैं जो कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरी नज़र की बात है यार, कभी उसने इंटरव्यू तक पहुंचा ही नहीं है, और अपने आप को लिखता है कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, है ना, 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, इस टाइप से यार, बिल्कुल। और दूसरी बात ये चीज़ मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, वो इंसान मेरे सामने की बात है, वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ था, और टाइम था इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले, मतलब इतना समझ लीजिए, जब यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा था ना, उसी टाइम का बात था, और मुझे पता था कि इसका ये इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और वो जब उसका किसी घर वाले का कॉल आया था ना, ठीक है, मतलब किसी रिलेटिव्स का था, तो मेरे सामने बोल रहा था हाँ इंटरव्यू होगा इस डेट पे। अब देखिए, ऐसे लोगों, वही इंसान कोचिंग खोल के बैठा हुआ है और अपने आप को लिखता है इंटरव्यू तक पहुँचे हुए, ठीक है। ऐसे लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना झूठ बोल के, और एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग जो अपने बोर्ड पे है ना, या बैनर पे, ठीक है, वो जो बहुत सारे यूपीएससी का जो मतलब क्लियर जिसका हुआ है उसका फ़ोटो छाप देता है ना, ये सब मैक्सिमम फ्रॉड ही होता है, मैक्सिमम गलत बात होता है, वो सब चीज़ नहीं रहता है किसी का सिलेक्शन, ठीक है।
हमारे सामने की बात है, कई सारे ऐसे देखा है मैंने, है ना। अब दोस्त भी है ना, तो उसका है ना मंगवा के अपने बैनर पे चिपका देता है, कहेगा ये इसने हमसे पढ़ा है, जबकि उस लायक वो था भी नहीं। उस लायक मतलब उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है उसी से गाइडेंस लिया हो, है ना, क्योंकि जान पहचान में था, कहीं लिंक में था, कांटेक्ट लिस्ट में था, रहता है, या फिर नहीं भी रहता तो एक दूसरे से कांटेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है ना चीज़ चलता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को मैच्योर नहीं करेंगे ना, जब तक अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे ना, जब तक आपने अपने आप को एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ साथ स्मार्ट भी नहीं बनेंगे ना, तब तक आपके साथ गेम खेल लिया जाएगा। आपका कोई दोष नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ और लास्ट तक कहता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, है ना, आपके साथ गेम ना खेले कोई, मेरा यही कोशिश रहता है, ठीक है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको जेन्युइन चीज़ भी मिलना चाहिए, ठीक है। मैं जस्टिस के फेवर में हूँ और आपको किसी भी हाल में जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ उनको टीचर्स को समझना चाहिए। और 90% हिंदी मीडियम के केस में बता रहा हूँ, 90% केस में ऐसा ही होता है कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल विलेज के होते हैं जनरली, ठीक है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली विलेज के होते, गांव देहात से आए होते, ठीक है। इतना उनको मतलब बहुत इनोसेंट होते हैं ना, इतना छल कपट उनको आता नहीं है, उस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, कि आपको जो दिया जाता है बिल्कुल विश्वास करके आप उसको लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है, बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, इस चीज़ को मैं बहुत अप्रेज करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखा है ना। तो देखिए, आप इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अब उनको क्या लगता है पता है कि बच्चे हम कुछ भी पढ़ा देते हैं ना तो भी इतना रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ पे गेम खेलते हैं, ठीक है। इसी वजह से अब कोई कुछ पूछता नहीं है, उल्टा सीधा मतलब जो जेन्युइन सवाल होता है ना वो पूछता नहीं है, ठीक है। तो उनको लगता है कि हम भी पढ़ा लेंगे, है ना। तो ये चीज़ माइंड को है ना पढ़ लेता है बच्चे का, मतलब स्टूडेंट का, ठीक है। और इस हिसाब से उसको लगता है यार मैं भी पढ़ा लूँगा, है ना। यही वजह है। देखिए आपको कुछ मतलब हार्ड मतलब कठोर है, क्या कह सकते हैं, बहुत मतलब कठोर शब्द है, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मान के चलिए कि क्या कहते हैं, है ना, आपको कुछ जेन्युइन सवाल पूछने चाहिए, भले ही वो आप बहुत ही पोलाइटली पूछिए, चाहे जैसे भी पूछिए, है ना। पूछने का तरीका चेंज कर लीजिए, लेकिन पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके साथ धोखा ना हो, ये चीज़ हर किसी को जहन में रहता है, ठीक है। तो आपके साथ धोखा ना हो, इसके लिए जो है ना आप जेन्युइन सवाल पूछिए। आप जब भी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, कोशिश कीजिए कुछ खुद भी पढ़ के जाइए, ठीक है। उस पर क्वेश्चन अराइज कीजिए बहुत पोलाइटली, ठीक है, और पूछिए, है ना। उससे अगर कई लोग फेंकता रहता है, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग फेंक देता है कि हमने ऐसे करवा देंगे, टॉप 50 में करवा देंगे, टॉप 10 में करवा देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलता है, राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, आपका इवैल्यूएशन प्रॉपर होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जितने यूपीएससी के मतलब मैं डिमांड करती यूपीएससी के, ठीक है, सब चीज़ बता देगा। लेकिन जैसे आप उसमें एडमिशन लेंगे ना, सब नल एंड वॉइड साबित होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी देखिए, बड़े कोचिंग में तो लगभग ठीक ठाक रहता है, टीचर्स भी आजकल मैंने देखा है बड़े कोचिंग का भी, है ना। कुछ टीचर ऐसे आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी का वो मतलब कहीं से पीएचडी किया, कहीं से अच्छे यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। देखिए डिग्री में और इसमें बहुत आसमान धरती का फ़र्क है,
तो वहाँ बड़े कोचिंग में भी आपको है ना थोड़ा सा बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर भी है ना बहुत सारे फ्रॉड चलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इतना नहीं है, पर छोटे कोचिंग जो है ना उसको लगता है कि हम पढ़ा लेंगे, और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपको पढ़ चुका हो पहले से, है ना। तो ये चीज़ है, तो यही रीज़न है, मेन रीज़न तो यही है ना। तो वो हमारे हिसाब से ठीक है, आपको वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो यूपीएससी के डिमांड को फुलफिल करे। ये तब होगा जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब आपने यूपीएससी का सिलेबस को ठीक है अच्छे से एनालिसिस किया हो, ठीक है, अच्छे से एनालिसिस किया हो, उसके एक एक वर्ड को एनालिसिस किया हो और उसको समझा हो, ठीक है, एक एक वर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज़ में मतलब वैलिड है, चाहे वो प्री की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो, ठीक है। ये चीज़ जब जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी ना, किसी टीचर का सवाल नहीं पैदा होता है कि वो आपके सामने उलूल जुलूल पढ़ा के निकलेगा, ठीक है ना। आप वही जैसे उलूल जुलूल पढ़ाएगा आपको समझ आ जाएगा कि ये फालतू चीज़ें हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का फैक्ट्स यूपीएससी में कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। उस दिन समझ में आ जाएगा। उसी दिन जिस दिन आप क्वेश्चन राइज कर देंगे ना, समझ लीजिए टीचर्स भी स्टॉप कर देगा इन सब चीज़ों को, ठीक है, पढ़ाना। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, देखिए और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है ना टीचर्स की कमी है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। और फालतू के लॉजिक देते रहते हैं, ठीक है, फालतू के लॉजिक देते रहेंगे कि बच्चे की कमी है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। पढ़ने वाले बहुत है मेरे नज़र में, है ना, हिंदी मीडियम के खास करके, ठीक है। इंग्लिश में भी बहुत सारे हैं, हिंदी मीडियम बहुत हार्ड वर्किंग होता है, एक गांव से होता है, उसको पता है कि मेहनत क्या चीज़ होता है और मेहनत उसको करने आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। भले टीचर्स कुछ भी कहेगा कि है ना मेहनत नहीं किया तो नहीं हुआ। देखो मेहनत भी होता है ना, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि वही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है क्योंकि आपको वैसे ही टीचर मिला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी जहाँ भी होता है शेयर कर लीजिए, ठीक है। ये जेन्युइन बात है, मैंने बता दिया एक टीचर होने के नाते, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर से मतलब कांटेक्ट भी किया है। इवन कि मैं जब कोचिंग विजिट करता हूँ ना, ठीक है, तो देखो बातचीत से पता चल जाता है कि कहीं न कहीं ये टीचिंग लाइन में भी है, ठीक है। तब उसी के बहाने मैं बहुत सारी चीज़ पूछ भी लेता हूँ, जब उसके ऐड देखता हूँ, जब उसके बैनर देखता हूँ, जब उसके जो क्या बोलते हैं पम्फलेट होता है ना उसका देखता हूँ, उस पर इतनी शानदार बातें लिखी रहती है ना, ठीक है, कि उसको पढ़ के बच्चे फंस भी जाते हैं और वहाँ एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो जब जाके विज़िट करता हूँ और पूछता हूँ सर ये यहाँ पे जो ऐसी बातें लिखी हुई है ये सच है क्या, तो उनका कहना होता है क्या पता है सर, आप तो खुद भी टीचर है, आपको भी पता है यहाँ मार्केटिज्म चलता है ना, ये बिजनेस है ना। तो मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि जवाब दूंगा तो फिर बहस हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये सब भले हो ना हो हमारा क्या जाता है, उनका कहना यही रहता है, हमारा क्या जाता है, ये बिजनेस ग्रो करने का प्लान है, ये बिजनेस प्लान है, ये इस टाइप से बताते रहते हैं, ठीक है। तो मैं समझ जाता हूँ कहीं न कहीं ये सब जो है ना
बच्चों के साथ इनजस्टिस करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी फेंक के, झूठ बोल के, ठीक है, बच्चों को फंसाने के काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो मैं समझ जाता हूँ कि है ना, ये सब फालतू की चीज़ लिख देता है, भले उसमें रियलिटी जितना भी हो, ठीक है, लेकिन बच्चों को फंसाने का बिजनेस प्लान है, ठीक। एक टीचर से मैं मिला था, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं जो है मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो मैं टॉप 50 के अंदर सिलेक्शन दिलवा दूँगा, ठीक है। मैं गया वहाँ पे, मुझे पता था ये सब फर्जी है, ठीक है। मैं गया वहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने कुछ पूछा, कहा कि आप टॉप 50 में करवा देंगे? कहा हाँ, क्यों नहीं। स्टार्टिंग में तो लगा कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो धीरे धीरे बात जो है खुल के सामने आता है, तो लगता है कि हाँ ये भी टीचर ही है, इनसे छुपाना बेवकूफ़ी है। मुझे लगा देखिए, कहना और करना बहुत आसमान धरती का फ़र्क होता है। तो उन्होंने कहा सर आप शायद पढ़ाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा पता है सर, आपको भी पता है जब पढ़ाते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मैंने कहा क्यों सर? ऐसा तो है नहीं कि सब टीचर ऐसे ही करते हैं, कुछ जेन्युइन टीचर भी होता है जो कि हाँ ऑनेस्टली पढ़ाते हैं, और है ना जो रिलेवेंट है ना वही कंटेंट बच्चों को देते हैं जो कि उसके एग्ज़ाम के लिए स्वीट कर सकता है, ठीक है। सब ऐसा नहीं हो सकता है। तो खैर कोई नहीं, हम आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने सच बताया कि ये बिजनेस प्लान है। हर कोई जो है इस मार्केट में एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर आपको तो पता ही है ये सब बिजनेस प्लान है, ये सब कुछ होता नहीं है, पर लिखना पड़ता है हमें, है ना। झूठ मूठ का भी है ना सिलेक्शन दिखाना पड़ता है, झूठ मूठ का लिखना पड़ता है कि हम टॉप 50 में करवा देंगे। झूठ मूठ का है ना और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं है ना सोच समझ के या फिर जो भी होगा डिसीजन लेके आपको बताएंगे, ठीक है। वहाँ इतना कह के मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे इतना ही नहीं है, तो एक की कहानी है ना, ऐसे बहुत सारी कहानी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक बार ऐसे एक डायरेक्टर से बात हुई थी मेरी, है ना, यहीं पे जीटीबी नगर में था वो, हालांकि था मतलब दोनों जगह है, मुखर्जी नगर में उसका मेन ऑफिस था, और वहाँ जो है ना उसका कोचिंग चलता था, मतलब क्लास चलता था, ठीक है। तो एक है ना मतलब सौभाग्य से क्या हुआ, उसके डायरेक्टर से बात हो गई, मतलब जो मैं विजिट किया था ना फर्स्ट टाइम, तो डायरेक्टर से ही बात हुई थी, और उसके बगल में उसके काउंसलर भी थे, दो काउंसलर थे, है ना। तो मैं डायरेक्टर के पास ही मतलब बात कर रहा था उनसे, ठीक है। तो चूँकि वो हिंदी मीडियम का कोचिंग था मेनली, ठीक है, तो है ना। और इंग्लिश अब क्या होता है ना कि हिंदी वाले जो कोचिंग होते हैं वो कोशिश करता है इंग्लिश मीडियम वाले भी चपेट में आ जाए, ठीक है। तो मैंने विज़िट किया, तो है ना मुझे कोशिश कर रहा था कि वो ये भी हिंदी मीडियम में चले आ जाए, ठीक है, मतलब हिंदी से कोचिंग कर ले, ठीक है। तो भाई मेरा तो अपना डिसीजन होता है, ठीक है। पूरा कोशिश किया उसने कि इसको हिंदी में डाल दें, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कौन सा मीडियम है, मैंने कहा कि सर इंग्लिश मीडियम है ना। तो कहा कि अच्छा। तो मैंने कहा सर हिंदी भी है, मतलब इंग्लिश भी है, या फिर केवल हिंदी में चलता है आपका? तो उन्होंने कहा कि दोनों में चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बात हुआ। फिर उसके बाद जो है तो हमसे पूछा कि सच में तुम इंग्लिश मीडियम के हो? मैंने कहा हाँ सर, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। जो इंसान जिस मीडियम से पढ़ा है, ठीक है, अब देखो
हम जैसे बिहार यूपी वाले जो होते हैं, ठीक है, और झारखंड और इधर उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, ये सब हिंदी बेल्ट है। हिंदी बेल्ट है मतलब बच्चे जो है ना, मतलब उसकी भले ही पढ़ने लिखने का जो है मीडियम इंग्लिश होता है, पर वो बोलते हिंदी में है, ठीक है, ये तो सबको पता है, वो बोलते हिंदी में है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लैकिंग रहता है, ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, हर कोई सीख जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ को इंग्लिश में बोल नहीं सकता है, भले ही उसके बोलने में थोड़ा सा इतना फ्लुएंसी ना हो, ठीक है, पर बोल ज़रूर लेता है अगर वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से है तो, ठीक है। बाकी सबका बात नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग फ्लुएंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग अपनी वो उनका मेन क्या भावार्थ रहता है। देखो, लैंग्वेज एक मीडियम है आपकी बात को कन्विंस करने का, ठीक है, उस पर जाना भी नहीं चाहिए किसी को। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका लैंग्वेज इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, लेकिन अपनी बात को तोड़ मरोड़ के ज़रूर लोगों के सामने बिल्कुल फ्रैंकली पेश कर लेता है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन भी होता है, और टॉप 50 के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इतना मतलब बोलने में, ठीक है, इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको दिख भी गया होगा, ठीक है। तो इस रीजन के मतलब इस टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो यूपीएससी का ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से क्या है कि आप अगर मान लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं आप रिटेन में अच्छे हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश अच्छे से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब बोलने की बात आती है, इंटरव्यू की बात आती है, तो वहाँ पे यूपीएससी भी आपको एक परमिशन देता है कि आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल है ना, उस मीडियम में आप अपना बोल सकते हैं, वो मीडियम आप चुन सकते हैं। ये तो है, आपको भी पता होगा, एक अगर यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, ठीक है, तो आपको भी पता होगा। लेकिन ये चीज़ उनको पता नहीं था, ठीक है। वो हमसे क्या बोलते हैं, हाँ, पहले तो हमको बोले कि कुछ है ना, कुछ टॉपिक दे रहे हैं, उस पर बोल के दिखाओ। तो एक टॉपिक दिया सच में, और मैं उस पर बोलना शुरू किया, ठीक है। मैं सोच सोच के बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, ठीक है। जो भी बात होता है, ऐसा नहीं कि रट के है ना एक सांस में बोल दिया सारा चीज़, है ना, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल जो भी टॉपिक उठाता हूँ पहले समझता हूँ, अगर पढ़ना भी रहता है ना पहले, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच आ गया, तो उस टाइम भी तो आपको 100% श्योर है कि सोच के ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पहले से टॉपिक पता नहीं है। लेकिन अगर टॉपिक पहले से पता है तो आप 1-2 बार पढ़ लेंगे और तब बोलेंगे, यही होता है। उस टाइम भी मैं क्या करता हूँ, सोच के ही बोलता हूँ, ठीक है। तो सोच के बोलने में जैसे एक इंसान फॉर्मली बोलता है, ठीक है, वैसे ही तो बोलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक टॉपिक दिया, मैं बिल्कुल है ना पेशेंस के साथ उस पर सोच के अच्छे से बोल रहा था, ठीक है। तो उसने क्या कहा मुझे पता है, उन्होंने कहा कि तुम फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में, इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हो, है ना। उन्होंने कहा कि है ना, तो मैंने कहा सर अगर ऐसा होगा, ठीक है, कि मैं कंफर्टेबल नहीं मतलब होऊंगा इंग्लिश में बोलने में, तो हिंदी चुन लूँगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं मतलब इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश हिंदी चुन लूँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा होता तो है सर, यूपीएससी में लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने बात पे है ना बहस शुरू कर दिया। मैंने कहा कि एक सर आप टीचर है, बहुत है ना, पता नहीं 20 साल 30 साल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूँगा, पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि यूपीएससी का अगर मेंस आपने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, और अगर बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, तो आपके पास प्रोविजंस है कि आप अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इस बात पे जो है ना बहस शुरू कर दिया। मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपसे बहस करने नहीं आया, ठीक है। तो फिर है ना
आपसे बहस मैं नहीं करना चाह रहा। आप हमसे बहुत एज में बड़े हैं, ठीक हैं, और हम लोगों का ये संस्कार भी नहीं मिला, मतलब हम लोगों को संस्कार भी ऐसा नहीं मिला है किसी बड़े से आर्ग्यू करे, बड़े से है ना बहस करें, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, है ना। मैंने ये चीज़ बोल के फिर अपना साइड हो गया। फिर वो अंदर चले गए। फिर उसका काउंसलर थी, मैंने उनसे बोला देखिए इनको तो डायरेक्टर हो के ये सब चीज़ पता नहीं है, तो बच्चों को क्या करवाएंगे, मिसगाइड ही करेंगे। 100% श्योर है कि मिसगाइड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे है, इस चीज़ को विश्वास करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड है यहाँ पे, बहुत सारे फर्जी कोचिंग है, बहुत सारे फर्जी टीचर भी है। देखिए हमारे यहाँ है ना, चलता है ना गुरु शिष्य परंपरा। हम लोग टीचर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वही टीचर हमारे साथ गेम खेलता है ना, तो ये अजीब लगता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। थैंक यू, है ना, और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। थैंक यू, है ना। और देखिए जेन्युइन बात है यहाँ पे, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहता हर किसी को जस्टिस मिले, ठीक, क्योंकि हमने भी उस टाइम को देखा है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल हमारी लाइफ में भी रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ठीक है, बहुत हर्डल्स आए हैं, लेकिन टैकल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और जब तक आप खुद होशियार नहीं है ना, आपके साथ हर कोई जो है ना गेम खेल लेगा, ठीक है। थैंक यू। शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, ताकि हर किसी को पता चल पाए, ठीक है।